Hello everyone, welcome back to the online learning of 11 Business Studies. My name is Pooja and for today's tutorial I will be explaining and dealing with initiatives offered to SSI so as to develop their industries in backward and rural areas, or you can say an untapped market or the area. As you know, picking rural area to start up any business venture would definitely not be the first choice for any of the entrepreneur or the business houses. So definitely, it calls for some additional incentives or temptation to be offered to the entrepreneurs so as to establish themselves in the rural market. So this is what will be the crux of today's tutorial. But before initiating, let us recapitulate what we had covered till date. In chapter small business, I had covered all essential concepts of chapter, made by your concept, features, role of SSI, problems of SSI, institutional support offered to SSI, and incentives offered to SSI will be today's tutorial. So let's get started to understand the crux of incentives offered to SSI. But before actually knowing exactly what all incentives are offered to small scale industries, let us understand why do incentives are offered to small scale industries. Because of the contribution of small scale industries in the development of Indian economy is the basic factor which helps them to secure the best possible incentives from the government so as to establish an untapped area. Small scale industries provides immense contribution in the form of output generation, providing employment opportunities, providing multiple sources of income, promotes balanced regional growth, it provides entrepreneurship opportunities, it offers low cost of production, it also contributes in export, it offers customized production to the rural market. So because of the listed and discussed points, as role of small business in rural India definitely creates its immense place in the development of a nation. यही एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो फॉर श्योर प्रमोट करना चाहती है स्मॉल स्केल बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट इन द रूरल मार्केट, बिकॉज तभी जाके वहाँ की डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी एंड ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यूज हम लोग अटेन कर पाएंगे. To develop the rural India, the government has formed various agencies, departments and corporations under the Ministry of Small Scale Industries so as to promote their establishment. So considering the contribution of small industries towards socio-economic development, the Government of India through the 5-year plans and the industrial policy statements has emphasized on formulation and implementation of various policies to establish, promote and develop small industry sectors specifically in the backward or lesser developed areas. The government provides significant package of incentives to attract industries in backward areas. So let's cover those basic kind of incentives which are promoted and which are offered to small scale industries for establishment. सबसे पहले गिवन है लैंड फैक्टर. सो इट इज़ मेंशन्ड इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस यूनिट, विच मीन्स दैट किसी भी बिजनेस को चाहे वो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करे, मीडियम पे या लार्ज स्केल पे ऑपरेट करे, डेफिनेटली दे हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस जिसके सेटिंग के थ्रू वो लोग काम करेंगे. सो ऑफकोर्स लैंड इज़ द मेजर काइंड ऑफ द रिक्वायरमेंट और द बेसिक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि हर एक बिजनेस को चाहिए ही होगा. So in order to encourage the establishment of industries in backward areas, the government provide land plots at concessional rates, विच मीन्स दैट स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या बैकवर्ड और अनटैप्ड एरिया में सेटल डाउन करने के लिए जो सबसे पहला इंसेंटिव यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफर करती है या टेम्पटेशन ऑफर करती है टू द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, डेफिनेटली वो होता है प्रोवाइडिंग the land at the concessional rates and especially to industrialists in the backward regions, which means that कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि बैकवर्ड एरिया में या हिली एरिया में बिजनेस को स्टैब्लिश करने के बारे में अगर एफर्ट करता है या सोचता है या द पर्सन इज रेडी, देन डेफिनेटली दे गेट द लैंड अवेलेबिलिटी एट रीजनेबल एंड कंसेशनल रेट्स. So by having land availability at concessional rates, definitely जो आपका setting up of the industrial factor हो जाता है, that is cheaper, that is in terms of the cost economical as compared to the availability of land at higher rates. So apart from providing infrastructure in the form of industrial estates for small scale industries, every state government provides developed land in the rural or hilly areas at very low rates to encourage setting up of industries in the backward areas. Various states provides power and water free for initial years, whereas other states provide them at concessional rates.
Next incentive is your power. So power is an essential requirement for the functioning of business enterprises. However, it supplies highly irregular in some part of India, which means that यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की फैक्टर है उसके बारे में टेंटेशन या इंसेंटिव ऑफर किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, सो दैट दे कैन स्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड और अनटैप्ड मार्केट. बट अगर हम लोग यहाँ पे पावर की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो पावर है वो किसी भी बिजनेस के लिए रन करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटल डाउन होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज प्रोडक्शन करने के लिए ऑफकोर्स जो पावर होगा वो हेल्प आउट करेगा आपको मशीन्स को रन करने के लिए एंड टेक्निक्स को रिलेट करने के लिए. बट जो पावर सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इन सम पार्ट्स ऑफ अनटैप्ड मार्केट ऑफ योर इंडिया. So therefore, in order to facilitate the setting up of industries in these areas, electricity is supplied at a discounted rate of 50%. So अगर आप ऐसे ही किसी भी एरिया में ये बिजनेस को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचते हो एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्मॉल बिजनेस हाउसेज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो डेफिनेटली इस एरिया में ऑपरेट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाती है, बट दैट टू एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ योर 50%. So in addition, some states exempt such unit from any payment during the initial years of operation. नॉट ओनली दिस, बट जो सम स्टेट्स होती हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं हमारी कंट्री के अंदर जो डेफिनेटली जो 50% यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट है उसको भी एग्जेम्प्ट कर देती है फॉर द मेकिंग ऑफ द पेमेंट ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. अगर आप इनिशियल फेज़ में हो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए इन द रूरल एरिया, तो ये जो 50% डिस्काउंटेड प्राइस आपको ऑफर किया जाता है आपसे वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, आपको वो भी पे ऑफ नहीं करना होता है. Next is banking and finance as an incentive. So the government runs various schemes under which the finance to small scale industries is provided either without any collateral security or at very low rate of interest factor. So as you know that हमने cover किया था the problems of SSI में, that finance is the root cause of all other problems जो कि यहाँ पे small business houses experience करते हैं. फाइनेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर हम लोग फाइनेंस की बात करते हैं तो इज नॉट बी द लाइफ ब्लड इन द बिजनेस. कोई भी बिजनेस जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकता है विदाउट हैविंग सफिशिएंट कैश और योर फंडिंग फैक्टर. सो देखा गया है दैट कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो एक्सपीरियंस करते हैं फाइनेंस फैक्टर की कमी की वजह से, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करते हैं. एंड फाइनेंस वो इसीलिए भी एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट काइंड ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी जो कि वो मॉर्गेज कर सके बैंक को, एंड बैंक उसके अगेंस्ट इनको लोन्स या फंडिंग प्रोवाइड करवा सके. सो बाय मीन ऑफ दिस प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस करता है स्मॉल स्केल बिजनेस. सो इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए इंसेंटिव के फॉर्म पे फाइनेंस फैसिलिटीज़ ऑफर करी गई हैं टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सो एज टू स्टैब्लिश देयर सेटिंग्स इन द रूरल एरिया. सो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है जहाँ पे वो फाइनेंस को ऑफर कर रही है टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी. उनको कोई भी चीज़ मॉर्गेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड दैट टू वो जो भी यहाँ पे लोन्स को सिक्योर करते हैं सो डेफिनेटली वो लोन्स को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं एट अ रीजनेबल, दैट इज़ एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर. So due to the poor banking facilities, industries set up in the backward areas face the problem of inadequate credit and finance. और एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है दैट की जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी साउंड नहीं होती है इन द अनटैप्ड मार्केट. सो इंडस्ट्रीज जो कि बैकवर्ड एरियाज में अपने आप को स्टैब्लिश करने के बारे में अफोर्ड करती हैं, सोचती हैं, देन डेफिनेटली दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट क्रेडिट एंड फाइनेंस फैसिलिटीज़ जो कि उनको मिल सकती थी अगर प्रॉपर काइंड ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती. तो इसी चीज़ का सोल्यूशन के फॉर्म पे गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन्स एट कंसेशनल रेट्स. जो भी लोन्स उनको चाहिए होते हैं काफ़ी कंसेशनल रेट्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे ऑफर किया जाता है, एंड दैट टू दे ऑफर सब्सिडीज ऑफ 10 to 15% फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल असेट्स. विच मीन्स दैट कोई भी असेट्स को जब वो खरीदते हैं सो ऑफकोर्स उस पर उनको सब्सिडीज़ ऑफर करी जाती हैं, प्राइस में रिलैक्सेशन ऑफर किया जाता है जिसका रेंज होता है 10 से लेकर 15% तक. नेक्स्ट इंसेंटिव इज ऑफ योर रॉ मटेरियल. सो एज यू नो कि रॉ मटेरियल जो होता है वो इनपुट फैक्टर होता है जिसको आप यूज़ करके प्रोसेस करते हैं, फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस करते हो. सो विदाउट हैविंग एप्रोप्रिएट रॉ मटेरियल डेफिनेटली जो स्मॉल स्केल बिजनेस है या कोई भी बिजनेस अगर होगा तो वो आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एलोकेटेड रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज एट कंसेशनल रेट्स अगेन, एंड दैट टू ऑन द प्रायोरिटी बेसिस.
विच मीन्स दैट जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस को चाहिए होते हैं, सो वो जो रॉ मटेरियल होता है उसका एलोकेशन का काम या जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, ये जो भी रिसोर्सेज एक आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है एट द कंसेशनल रेट, सो दैट जो स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेज हैं वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ऑन द ग्राउंड ऑफ योर लो क्वालिटी रिसोर्सेज या इनपुट फैक्टर बिकॉज ऑफ हैविंग लेस एडिक्वेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ और फाइनेंस। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने एफर्ट किया है कि जो भी रिसोर्सेज है, जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पे चाहिए होंगे उसको प्रोक्योरमेंट करने का काम, उसको अलॉट करने का काम, एलोकेट करने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो होगा वो गवर्नमेंट करेगी फॉर योर स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेज। एंड दैट टू जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो कंसेशनल या डिस्काउंटेड प्राइजेस पे उनको ऑफर किए जाएंगे एंड दैट टू ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, विच मीन्स दैट जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे जिस भी स्मॉल स्केल बिजनेस को चाहिए होगा, अगर वो स्केर्स होता है, वो कन्फाइंड होता है, लिमिटेड होता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे पहले उनके नीड को पूरा करने के लिए उस रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में एफर्ट करेगी जो कि स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेज को चाहिए जिन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट कर रखा है इन द बैकवर्ड एरियाज एंड दैट टू ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। Next we have tax exemption. So government as the part of the support to small industries exempt them from various taxes also. So as you know कि जो taxes होते हैं वो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है एंड जो भी कॉर्पोरेट हाउसेस रन करते हैं अपने बिजनेस को, जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर लेवी होता है उनका टैक्सेस। सो गवर्नमेंट जो है टेम्पटेशन के फॉर्म पे या इंसेंटिव के फॉर्म पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के स्टैब्लिशमेंट के लिए उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन को ऑफर किया है। जो बहुत सारे टैक्सेस किसी भी कॉर्पोरेट या बिजनेस हाउस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसमें से उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। इस चीज़ का इंसेंटिव ऑफर किया गया था टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। So in order to attract entrepreneurs to set up industries in the backward areas, different state governments grant tax exemption to the industries, which means that again entrepreneurs जो कि establish करना चाहेंगे अपने business को, अगर उनको अनटैप्ड मार्केट में एंट्री करनी है या अगर वो विलिंगनेस क्रिएट करते हैं अपने अंदर की दैट दे वांट टू स्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरिया, सो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको टेम्प्ट करने के लिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो टाइम आफ्टर टाइम एग्जेम्प्ट करती हैं जो टैक्सेस उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं पे करने के लिए इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। सो इस वे में जो अगेन एक टेम्पटेशन ऑफर किया जाता है, इंसेंटिव ऑफर किया जाता है सो दैट मासेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कैन स्टार्टअप देयर इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरिया। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर 5 to 10 years, विच मीन्स दैट 5 से 10 साल तक उनको कोई भी टैक्सेस एज सच पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है गवर्नमेंट को। सो नॉट ओनली दिस बट टेक्नोलॉजी के फॉर्म पे और ट्रेनिंग्स के फॉर्म पे भी इंसेंटिव्स ऑफर किए जाते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैब्लिश करना चाहें अपने बिजनेस को इन द रूरल एरियाज़। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें सो गवर्नमेंट हैज़ स्टैब्लिश वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस which provide technological assistance to the small industries so that they can enhance the productivity and production cost को किस तरीके से कम किया जा सकता है उस चीज़ को भी समझाया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी उनके लिए बेटर हो सकती है परफॉर्म करने के लिए। ये सारा जो असिस्टेंस होता है ये इंसेंटिव के फॉर्म पे ऑफर किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। And if I talk about the training factor, so the government has formulated various policies under which individuals running small industries are provided training related to the latest technique of production कि कौन से टेक्निक है जो कि लेटेस्ट है जिनको यूज़ करना चाहिए सो दैट उनका जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो भी अच्छी हो सके। व्हाट ऑल आर द एवेन्यूज़ फॉर द मार्केटिंग, कहाँ से उनको कैसे पैसे मैनेज करने हैं, किस तरीके से उनको पैसों को एक्यूमुलेट करना है, ये सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के एंटरप्रेन्योर्स को जो कि स्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने बिजनेस को इन द रूरल एरियाज़ ऑफर करती हैं सो दैट दे कैन हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट एंड फंक्शनिंग। So this was all about the incentives being offered to the small scale industries and to the entrepreneurs who want to settle down their business so as to attract them so that they can enter into the untapped market or the rural area. As I've duly covered the incentives, so here the time has arisen जहाँ पे हमें एक बार रिकैप्चुलेट करना होगा कि एंटायर सेगमेंट ऑफ द ट्यूटोरियल में हमने क्या कवर किया है व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर स्मॉल स्केल बिजनेस। सो आई स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस वेयर इन आई टोल्ड यू अबाउट कि स्मॉल बिजनेस एक्चुअल में क्या है, कि वो सबसे लोवेस्ट लेवल पे किस तरीके से ऑपरेट करता है। आई टोल्ड यू अबाउट द MSMED एक्ट विच वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 2006 एंड जो कि गवर्न करता है द पॉलिसीज और द नॉर्म्स ऑफ द फंक्शनिंग फॉर योर स्मॉल स्केल बिजनेस। एंड देयर आफ्टर मैंने रोल्स को कवर किया स्मॉल बिजनेस के लिए कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है
स्मॉल स्केल बिजनेस का स्टैब्लिशमेंट का, नॉट ओनली फॉर द एरिया जहाँ पे वो स्टैब्लिश किया जाता है बट ऑफ कोर्स फॉर द नेशन एज वेल। इसके बाद मैंने कवर किया था द प्रॉब्लम्स ऑफ एसएसआई कि स्मॉल बिजनेस जो है ऑल्दो वो काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, बट स्टिल उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को सफ़र करना पड़ता है। एंड सबसे मेजर जो होता है वो फाइनेंस होता है, एंड फाइनेंस की वजह से काफ़ी और भी कॉम्प्लिकेशंस एराइज होती हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस एक स्मॉल बिजनेस हाउसेस को एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। देयर आफ्टर आई डिस्कस्ड अबाउट कि क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफर करती है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टैब्लिशमेंट पॉसिबल हो पाए ऑफ योर स्मॉल स्केल बिजनेस इन द रूरल एरिया। एंड फर्दर आज मैंने कवर किया, आज के ट्यूटोरियल में मैंने कवर किया था इंसेंटिव्स जो कि टेम्पटेशन के फॉर्म पे ऑफर होते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस को एंड एंटरप्रेन्योर्स को, सो दैट दे कैन पिक द रूरल एरिया एज द एरिया और द लोकेशन फॉर सेटिंग अप देयर इंडस्ट्रीज एंड business. So that was all about the chapter small business. Thank you so very much.